When we talk of appointment, we'll talk from both point of view. What is the process which is to be followed by the company, and then what is to be followed by the auditor. Company case के अंदर, when the company is incorporated, the first appointment, and in case it is first appointment, the only thing which the company is to see whether he is qualified, and then we'll see the process. And even in the case of appointment or reappointment, whether the CA is qualified or not. Because if he is not qualified, appointment cannot start. It cannot begin. You know, I had a lot of queries कि ADT1 कब फाइल करना है, ADT3 कब फाइल करना है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, रीअपॉइंटमेंट कब होनी है, एक्चुअल अपॉइंटमेंट कब होनी है, all these things. So we'll be discussing all that. So let us go through the procedure for the first appointment. A company is incorporated, say on today it is incorporated. Let us see. So when it is incorporated, what are the procedures that will be taken? First of all, the board or the audit committee, they have to consider the qualification and experience of the auditor, that it is commensurate with the size and requirement of the company. You know, what I am talking is all legal. It is the requirement of the rules. Now, अब हम जब audit कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार इसके अंदर क्या है, कर लेंगे बाद में. You know, when you are observing the minutes, जब हम minutes की बात करते हैं, तो उस minutes में appointment से पहले the board has to take note of this. If they don't take note of that, then it is a violation of the rules. They have to do it. ऐसा ना हो कि कंपनी की जो टर्नओवर वो 50 करोड़ की है और आप कंपनी ने अपॉइंट किया एक सोल प्रोप्राइटर विद अ 1 year एक्सपीरियंस विद वन आर्टिकल. How they will justify the requirement of the company is being met? It is commensurate with that. So, first of all, and this process, the first 3 steps is there for first appointment, for reappointment, all cases. Second, the board and the audit committee is to consider the completed and pending proceeding against the auditor by ICI, by NAFRA, by tribunal, and in the court. For that, we are issuing a certificate also. And that is to be again noted in the board minutes that they have considered it. Third, before appointment, a written consent is to be given along with a certificate by the chartered accountant that he is satisfying all the conditions of section 141. ये सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया, आप लोगों ने दिया होगा पिछले साल. ये कंसेंट लेटर और ये सर्टिफिकेट आने के बाद then starts कि board will appoint within 30 days. कंपनी जब incorporate हुई, incorporation के within 30 days board will appoint. If board doesn't appoint, then board ने appoint नहीं किया, फिर क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स कितने कब तक अपॉइंट कर सकते हैं? टाइम लिमिट तो होगा कोई? Before the No. No. The shareholders have to appoint within 90 days from the date the board is informing the members that the auditor has not been appointed. You know, to be very frank, in smaller companies, actual board meetings are not happening. But where actual board meetings are happening, there can be nothing done backwards. तो वहां पर इशू हमेशा आता है ये 90 दिन कब से काउंट होंगे? 90 दिन तब से होंगे जब से कि बोर्ड ने इन्फॉर्म किया मेंबर्स को. एंड आफ्टर दैट विद इन 15 डेज द कंपनी इज टू इन्फॉर्म द ऑडिटर एज वेल एज टू द ROC विद इन 15 डेज. बट फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ADT1 इज नॉट मैंडेटरी. It is optional. It is not mandatory but optional, right? But I personally feel ADT1 should be filed, and the appointment would be up to the first AGM. First AGM तक appointment हो, ठीक है? एक CA का सर्टिफिकेट है, ये सबको पता ही है. ये 4 पॉइंट उसमें जाते हैं कि 141 में है, विद इन द टर्म है, विद इन द लिमिट है, और जो उसकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो सब कुछ ये लिस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें. ये 4 पॉइंट सर्टिफिकेट में जाते हैं, राइट? अब अपॉइंटमेंट होना है, AGM आ गई. AGM में जब अपॉइंटमेंट होना है तो
पहले 3 स्टेप्स वही, बोर्ड को क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखना है और उसको जो है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स देखनी है और सीए का सर्टिफिकेट लेना। इसके बाद बोर्ड ने रिकमेंड किया एजीएम के अंदर कि ऑडिटर को अपॉइंट करो, तो ऑडिटर अपॉइंट होगा फॉर 5 इयर्स। Appointment by the AGM in the AGM is always for 5 years. A block of 5 years. A term of 5 years. काफी लोगों ने काफी क्वेरीज आती हैं 1 साल के लिए किया, 3 साल के लिए किया, which is wrong. It has to be for 5 years. Though the auditor is appointed for 5 years, but annually आपको रेटिफाई करना है। क्या आपने इस बार की जो नोटिस है एजीएम के नोटिस के अंदर ऑडिटर्स को रेटिफाई किया कि नहीं किया? सबने किया। अगर मान लो आप रेटिफाई नहीं करते तो क्या करना होता? कौन अपॉइंट करता? नहीं, बोर्ड, और वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता। दिस वॉज द इशू विच आई वॉज टेकिंग अप सिंस लास्ट 2 years with the institute, with the ministry, everywhere, because जब कहते हैं अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए है और 5 साल से पहले रिमूव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेके आओ। लेकिन अगर एजीएम में मैंने रेटिफाई नहीं किया तो कैजुअल वैकेंसी एंड डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एनीवन। तो ये तो बड़ा सीधा लूपहोल हो गया, मैं रेटिफाई नहीं करता और जिसको मुझे चेंज कर, मैं जितने क्वालिफिकेशन कह रहा हूं कहते नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं रेटिफाई नहीं करता। नाउ दिस कंपनी लॉ कमेटी व्हिच वाज कंस्टिट्यूटेड इन June 2015 and sent the suggestion there also, and luckily they have heard it and they have recommended that this is what I was saying against the basic intent, so ratification should totally be removed. Now the ball is in the court of the government because the suggestion has gone there, so अगर ratification हटती है तो it will be a good win for our auditors, otherwise हमारी independence बहुत hamper हो रही है। क्या है कि हम क्या डे टू डे में है, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो बहुत जगह ऐसे हैं जहां मैनेजमेंट आपको उनको रिमूव करना चाहता है। आपने ज्यादा क्वालिफाई कर दिया, आपने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, अब पिछले साल से इस साल स्ट्रिक्टनेस तो बढ़ी है, तो धीरे धीरे और भी बढ़ेगी, तो कह रहे हैं कि मैं आपसे नहीं कराऊंगा, किसी और से कराऊंगा। एंड इफ यू डोंट वांट टू रिजाइन दे विल से ओके, नॉन रेटिफिकेशन, समवन एल्स विल ऑडिट। सो दिस इज अ गुड विन फॉर अस। एंड देन यहां पर 15 डेज के अंदर AAT1 फाइल करना है और ऑडिटर को अपॉइंट करना, राइट। रोटेशन हर केस में नहीं है। आपको पता है रोटेशन किस केस में? लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनी जिसकी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, प्राइवेट कंपनी जिसकी की पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ऊपर, और कोई भी कंपनी जिसकी की पब्लिक बोरिंग 50 करोड़ से ऊपर। इसके अलावा जितनी भी कंपनी उसमें रोटेशन नहीं है। मान लीजिए 5 साल खत्म होते हैं तो 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट होना है, वो 5 साल आदत नहीं है अभी कैलकुलेट करने की, और मान लीजिए 5 साल बाद आप भूल गए तो क्या होगा? पांच साल बाद अपॉइंटमेंट होनी थी और नहीं हुई, री अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और आप रोटेशन में भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं, एक्ट में लिखा हुआ नहीं, जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, एक्ट में लिखा हुआ है इन द केस ऑफ रीअपॉइंटमेंट इफ द ऑडिटर इज नॉट रीअपॉइंटेड ही विल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। कुछ नहीं करते, यू आर ऑलरेडी अपॉइंटेड। अपॉइंटमेंट में जाता सर अपॉइंटमेंट में जाना, उसी का वो चलेगा। यू नो एक्ट में मेंशन है ये कि अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो यू विल बी ड्यू टू बी रीअपॉइंटेड, बट अगर रेटिफिकेशन नहीं हुआ तो यार दिस इज रिडिकुलस। जैसे वो 5 साल के बाद हटाना है तो हाँ, तो मतलब दिस वाज रिडिकुलस, स्टिल नो वन वाज हियरिंग इट, नो वन वाज हियरिंग इट, मतलब कि इतना कोशिश करने के बाद भी किसने कुछ किया नहीं इसमें। ठीक है जी, रीअपॉइंटमेंट जो 5 साल बाद होना है, he will be reappointment if he is not disqualified for reappointment, company has not given a notice in writing for unwillingness, SR उसका पास नहीं हुआ, और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी,
कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन से होती है, अगर ऑडिटर रिजाइन कर दे तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, अदरवाइज बोर्ड अपॉइंट करेगा। जब कैजुअल वैकेंसी हो रही है और बोर्ड अपॉइंट कर रहा है तो सेम थिंग, पहले 3 स्टेप्स, पहले वही 3 स्टेप्स हो जाएंगे, उसके बाद बोर्ड विल फिल विद इन 30 डेज, और बोर्ड फिल नहीं करता तो यहां पे विद इन 90 डेज ऑफ बोर्ड रिकमेंडेशन अगेन, एंड 81 अगर ऑप्शनल है। दिस इज द प्रोसीजर आई एम टेलिंग फॉर क्वेश्चन, यू नो। ये 30 days from the date of वैकेंसी, vacancy means वैकेंसी का मतलब ये हुआ मैं एक तरह से डिस्क्वालीफाई हो गया, ऑडिटर की डेथ होगी। रेजिग्नेशन के अलावा जिस भी वजह से ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इट इज अ कैजुअल वैकेंसी। उसमें जो रेजिग्नेशन का फॉर्म डेट भरना तो बाद में पड़ता पता है चल कैजुअल वैकेंसी में फॉर्म नहीं बाद जाता, में पता चलती है, डेथ हो है पता ही नहीं चला कंपनी को। कोई बात नहीं, जब पता लगे तब, अगर नहीं पता लगा तो 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड रिकमेंडेशन ईजीएम में करा। वी शुड नो द प्रोसेस कि करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि कई बार क्या ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चंस आते हैं तो वी आर नॉट रेडीली अवेलेबल विद द आंसर्स।